Hello friends, now we'll be studying about the recent history and the latest developments in the field of public health and how it got developed to the present day working. So after studying about the history of public health in olden times, now we will be learning something about the recent history of public health, and we will be focusing our attention towards the latest developments that occurred only after the independence of our country. What happened during this time was governments with and without the support of international organizations such as WHO, that is World Health Organization, which was established on April of 7, 1948, and governments launched national programs like to contain diseases like malaria and tuberculosis, immunization programs at large scales, with the support of vaccination campaigns, surveillance, and prevention measures. Smallpox were eradicated in 1980 at the global level. So it was a collective effort by the governments of around the world that population at large benefited completely, and they were given vaccinations and programs to control diseases like malaria and tuberculosis were implemented, and population became totally free of diseases like smallpox, and it was eradicated in 1980 at the global level. Then according to Institute of Medicine, that is IOM 1988, during the past 150 years, the two factors have shaped the modern public health. What were these factors? These were the enhanced knowledge of scientific field about the sources and means of controlling diseases, and more public acceptance of disease control as both a possibility and public responsibility. So it was a collective effort on the part of the medical fraternity as well as the public at large. So enhanced knowledge, increasing knowledge, up to updating knowledge of the scientific field, that is the latest developments in the scientific field, as well as public acceptance and responsibility towards controlling disease and prevention of spreading the disease on the part of public. It helped a lot to implement the public health programs and benefiting the public at large. So one of the very recent development in the recent historical times was the Alma Ata Declaration. The declaration was adopted at the International Conference on Primary Health Care, Alma Ata, Kazakhstan. The conference was held between 6th to 12th September 1978, and it emerged as a major milestone of the 20th century in the field of public health. Now, in this conference, a number of recommendations were made, and the primary recommendation that was made was on relying on the primary healthcare as the major service provider towards the public health. So the declaration identified primary healthcare as the key to the attainment of goal of health for all by 2000 AD. So the mantra for the nations of the world became the health for all by 2000 AD. And by what measures? The measures taken should be at the primary level. The primary health care was supposed to be the key for it. So the Alma Ata Declaration expressed the need for urgent action by all governments, health and development workers, and the world community to protect and promote the health of all the people around the world. The declaration stated that health, which is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity, is a fundamental human right, and that the attainment of the highest possible level of health is the most important worldwide social goal whose realization requires the action of many other social and economic sectors in addition to the health sector. सो तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियर होगा कि अल्मा मैटर डिक्लेरेशन में क्या कहा गया कि अल्मा मैटर डिक्लेरेशन ने ये बोला कि एक तो जो हमारी बेसिक डेफिनेशन ऑफ हेल्थ थी उसको कैसे कंप्लीटली अटेन किया जाए, दैट इज जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ हेल्थ यहाँ पे फिर से एक बार रीट्रेट होती है, ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग and not merely the absence of disease or infirmity is the fundamental human right.
तो हेल्थ को फंडामेंटल ह्यूमन राइट बोला गया है एंड और इसका जो अटेनमेंट है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ मेजर्स पे होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड वाइड सोशल गोल है उसकी रियलाइजेशन कैसे हो सकती है, उसकी रियलाइजेशन मल्टी फेसेटेड होनी चाहिए, मल्टी कंट्रीब्यूटरी डिपार्टमेंट फ्रॉम मल्टी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिपार्टमेंट मल्टी डिपार्टमेंट्स होनी चाहिए, जैसे कि सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स में, नॉट ओनली ऑन द पब्लिक हेल्थ सेक्टर। तो सारे सेक्टर्स को मिलजुल के काम करके पब्लिक हेल्थ की तरफ काम करना चाहिए। So Alma Ata Declaration further stated that governments have a responsibility for the health of their people, which can be fulfilled only by the provision of adequate health and social measures. अच्छे measures, adequate health measures और social measures, दोनों तरह के measures अपनाने चाहिए governments को towards building the health of their people. One of the main social target of governments, international organizations, and the whole world community in the coming decades should be the attainment by all people of the world by the year 2000 of a level of health that will permit them to lead a socially and economically productive life. तो सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ लीड करने के लिए जो भी पॉपुलेशंस को चाहिए वो वर्ल्ड कम्युनिटी कम टुगेदर आनी चाहिए, ताकि इन सब चीजों को गवर्नमेंट और इंटरनेशनल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अप्लाई किया जा सके, ताकि हेल्थ को अच्छे लेवल पे अटेन किया जा सके ऑल अराउंड द वर्ल्ड। प्राइमरी हेल्थ केयर इज की टू अटेनिंग दिस टारगेट एज पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट इन द स्पिरिट ऑफ सोशल जस्टिस। तो प्राइमरी हेल्थ केयर को इन्होंने हाईलाइट किया कि प्राइमरी लेवल पर ही इस चीज को सबसे ज्यादा अप्लाई करके हम बेनिफिट कर सकते हैं, ताकि जनरल पब्लिक को सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए नहीं जाना पड़े। So the social model of health was considered for the attainment of health for all at the primary healthcare level, and for many decades the concept of public health was largely equated with the sanitary idea of environmental reform and methods from the from preventive medicine such as immunization. तो ये दो तरीके जो थे, एक तो सैनिटरी आइडिया मींस कि सब साफ सफाई हो, अच्छे से हम सैनिटाइज करें हर चीज को, प्लस अपने जो हमें पानी मिल रहा है पीने का वो भी सैनिटरी आइडिया में ही इन्वॉल्व होता है कि पीने का पानी भी हमें साफ सुथरा मिले और जिससे कि हम डिजीज फ्री रह सकें, और जो वेस्ट डिस्पोजल है उसका भी ठीक से डिस्पोजल सही टाइम पे सही जगह पे डिस्पोजल हो, ताकि वो भी हमें बीमारियों की रोकथाम में हेल्प मिले। दूसरा तरीका इम्यूनाइजेशन का, कि बीमारी होने से पहले ही हम उसकी वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन ले लें। तो इन दोनों चीजों के ऊपर जो है सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ रिवॉल्व करता है। Though there have been considerable gains in terms of life expectancy and quality of life, many countries still faced scourges of communicable diseases as well as the pandemics and non-communicable diseases such as diabetes and cancer. Now, new conceptualizations of health and disease also emerged. तो काफी देर तक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत लो रही, इवन वी अटेन्ड इंडिपेंडेंस इन द ईयर ऑफ 1947। हमें काफी जूझना पड़ा अपने लोगों के लिए अच्छी हेल्थ गेन कराने के लिए, और इसके बाद भी कई कंट्रीज में काफी कम्युनिकेबल डिजीजेस भी स्प्रेड होती रही। पेंडेमिक और एंडेमिक एंड पेंडेमिक दोनों, इसके बारे में बात करेंगे, पेंडेमिक क्या होते हैं, एंडेमिक क्या होते हैं, और वो भी फैलते रहे। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज और कैंसर हैं वो भी काफी हद तक पॉपुलेशन में देखने को मिली। Then the realization that the health and disease is complex and they are rooted in social, physical and cultural environment in which people lived gave rise to the social model of health. तो एक बेसिक आइडिया जो हमें सोचने के लिए मिला कि जो हेल्थ एंड डिजीज को हम डील कैसे कर सकते हैं, कि ये कॉम्प्लेक्स है, हेल्थ और डिजीज आपस में इतने इंटर रिलेटेड हैं कि हमें सोशल, फिजिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट में ही इनका रेजोल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो इसी के ऊपर बेस्ड हुआ सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ, ताकि उसको सोशल लेवल पर ही हम लोगों को अवेकन कर सकें, लोगों को एजुकेट कर सकें, ताकि सोशल लोगों विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड मोड ऑफ एक्शन गिविंग सोशल एजुकेशन ओनली लोग भी
बीमारियों से लड़ने और रोकथाम के लिए कैपेबल रहे। Social model of health also advocated a multi-casual approach to the health and illness. अब ये मल्टी कैजुअल अप्रोच का मतलब कि देयर शुड नॉट बी एनी स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, या लोगों को मेडिसिन की पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए और इलनेस को दूर करने के लिए। सोशली जो चीजें अवेलेबल हैं उसी के, सोशली चीजें जो लोग करते हैं, कल्चर में जो चीजें अपनाते हैं, उसी को लेके हम पर्सन्स को, पॉपुलेशन को एजुकेट कर सकें कि उनकी डिजीजेस और इलनेसेस को दूर करने का क्या तरीका है और हेल्थ गेन करने का क्या तरीका है। The social model of health considers a wide range of factors that influences health and well-being, such as economic, political, environmental, social and cultural. इन सब चीजों को एनकम्पास किया गया एक सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ में। द करंट प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक हेल्थ इज लार्जली बेस्ड ऑन द सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ। द contributions from Rene Dubos, he was an American biologist and eminent medical historian. Thomas McKeown, he was a British medical historian, and Ivan Illich, he was a Croatian Austrian philosopher and critic of institutions from modern Western culture. All three scientists in the 60s and 70s also played important role in the development of the social model of health. तो इन तीनों की कंट्रीब्यूशन देखिए, तीनों अलग अलग फील्ड से हैं, अलग अलग जगहों से हैं। एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और एमिनेंट मेडिकल हिस्टोरियन भी रहे ये रीनी डिबोस। दूसरे ब्रिटिश मेडिकल हिस्टोरियन हैं थॉमस मैकियोन, और इवान इलिच हैं जो वो क्रोएशियन ऑस्ट्रियन फिलोसोफर हैं और जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर के क्रिटिक भी रहे हैं। तो इन तीनों की अपनी अपनी अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस जो 1960s और 70s के दौरान रिकमेंडेशंस की गई अपने अपने हिसाब से, उनको भी सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ में एनकम्पास किया गया। Then we come on to the modern public health systems and how they work in a vast variety of people and population, like in our country, that is India. And for that we have to learn some key terms related to public health, and we will come on to this this public health systems refers to all public, private, voluntary entities that contribute to the delivery of essential public health services within a jurisdiction. किसी भी एरिया में, किसी के भी अख्तियार में जो एरिया आता है, किसी लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या इवन नेशनल लेवल पे भी, उसके अंदर जो भी पब्लिक, प्राइवेट और वॉलंटरी एंटिटीज हैं जो भी पब्लिक हेल्थ में अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, ये उनको रेफर करता है। द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इंक्लूड्स पब्लिक हेल्थ एजेंसीज एट स्टेट एंड लोकल लेवल्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, पब्लिक सेफ्टी एजेंसीज, ह्यूमन सर्विसेज एंड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, education and development organizations, recreation and arts related organizations, economic and philanthropic organizations, environmental agencies and organizations. So almost all these organizations make their contributions towards making the public health a success and attainment of health for all and in the large population. One of the very important terms that is dealt with by public health is epidemic or outbreak. What is an epidemic? Occurrence of cases of an illness, specifically health-related behavior or other health-related event, clearly in excess of normal expectancy in a community or region. तो दोस्तों, ये तो होता नहीं है कि कोई भी बीमारी हम सोचें कि कभी किसी को होगी नहीं, वो पब्लिक हेल्थ का टारगेट है। तो एक्सपेक्टेड लेवल पे जब किसी भी बीमारी का बढ़ा हुआ रूप देखा जाता है या बहुत ज्यादा लोगों में अनएक्सपेक्टेडली देखा जाता है कि ये बहुत ज्यादा लोगों में हो गई है या बहुत ज्यादा एरिया में हो गई है, तो वो एक पब्लिक हेल्थ के लिए इशू बनता है। तो उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं, जब किसी भी बीमारी का एक्सेस में देखने को मिले। बोथ टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, हाउएवर epidemic usually refers to a larger geographic distribution of illness of health related events. किसी भी health related event का larger geographic distribution में होना ही epidemic कहा जाता है।
और जबकि आउटब्रेक जो है दैट इज ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन नंबर ऑफ एपिडेमिक केसेस. द टर्म आउटब्रेक also can be used to refer to even a single case in a new area. आउटब्रेक का मतलब किसी ऐसी जगह पे बीमारी का मिलना जो ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड हो और इंक्रीज्ड इन नंबर में मिलती हो, या इंक्रीज इन नंबर ना भी सही, किसी एरिया में अनएक्सपेक्टेडली हमें कोई केस मिल जाए जो बीमारी वहां पे एक्सपेक्टेड नहीं है होनी, तो उसको आउटब्रेक बोला जाता है. इफ इट्स नॉट क्विकली कंट्रोल्ड एन आउटब्रेक बिकम्स एन एपिडेमिक. तो अगर आउटब्रेक को हम रोके नहीं, मान लीजिए एक ही केस, जैसे अभी कोरोना केसेस मिले, तो एक केस कहीं ऐसी जगह पे मिल गया जहां पे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि वहां पे कोरोना ओरिजिनेट नहीं हुआ, तो वो अगर नहीं कंट्रोल किया जाता है देन इट कैन बिकम एपिडेमिक. एपिडेमिक में वो लार्जर नंबर ऑफ पॉपुलेशन को एंगेज करेगा, लार्जर नंबर ऑफ पॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड. देन कम्स पैंडेमिक. तो ग्रॉसली जब भी एपिडेमिक्स किसी लार्जर एरिया में चला जाता है ऑफ द ज्योग्राफिकल फील्ड्स, तो उसको पैंडेमिक बोला जाता है. तो एन एपिडेमिक ऑफ डिजीज इज दैट हैज स्प्रेड अक्रॉस ए लार्जर रीजन, फॉर इंस्टेंस multiple continents or even worldwide. For example, in the beginning, COVID-19 was limited to Wuhan, China. Then it was an epidemic. However, the massive geographical spread turned COVID-19 into a pandemic. जब वो सारे ही देशों में, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, और कितने सारे मल्टीपल कंट्रीज इससे अफेक्ट हुए, तब वो पेंडेमिक कहलाएगा. Then comes endemic. A disease that is invariably present in a region or population. किसी खास रीजन में या किसी खास तरह की पॉपुलेशन में जब एक ही डिजीज पाई जाती है, उसको एंडेमिक बोला जाता है. Usually the term is used to refer something that belongs to a particular people or country. For example, malaria in African countries. तो अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ तरह का मलेरिया पाया जाता है, उसको हम एंडेमिक बोलेंगे. जो कोई डिजीज जब खास पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, खास एरिया में ही अफेक्ट करती है, उसको एंडेमिक बोला जाता है. तो पब्लिक हेल्थ साइंसेज, इसका मतलब क्या हुआ? पब्लिक हेल्थ साइंसेज में क्या क्या होता है और वो किस किस के ऊपर असर करता है अपना. हेल्थ बीइंग ए मल्टीफैक्टोरियल, मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टीफेसेटेड requires a multidisciplinary teamwork to address the problems and issues at the population level. क्योंकि हेल्थ भी मल्टी फैक्टोरियल है, काफी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी फेसेटेड है, काफी चीजें उसके ऊपर असर भी करती हैं, और हेल्थ इन एवरी एस्पेक्ट हमें चाहिए, तो इसलिए वो मल्टी फैक्टोरियल भी है, मल्टी डायमेंशनल भी है, मल्टी फेसेटेड भी है. इसीलिए हेल्थ, अच्छी हेल्थ को चाहिए क्या? एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क, तो जो कि प्रॉब्लम्स को एंड इश्यूज को पॉपुलेशन लेवल पे एड्रेस कर सके. देन पब्लिक हेल्थ इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ मेनी डिफरेंट डिसिप्लिन्स लाइक बायोलॉजी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, बिजनेस, एजुकेशन. तो कितने सारे फील्ड्स ये पब्लिक हेल्थ की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इट हैज टू बी ए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क. वन मोर टर्म वी हैव टू लर्न अबाउट इज क्लिनिकल केयर और हेल्थ केयर. दिस इज प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इलनेस एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग थ्रू द सर्विसेज ऑफर्ड बाय मेडिकल एंड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स. सो इट इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ केयर. तो किसी भी डिजीज की प्रिवेंशन, उसका ट्रीटमेंट और उसकी मैनेजमेंट का जो करना है, उसको इफेक्टिव बनाना है, और मेंटल और फिजिकल वेलबींग को प्रिजर्व करना है, कि इन सब की सर्विसेज ऑफर्ड मेडिकल और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की सर्विसेज के साथ, उसको हम क्लिनिकल केयर और हेल्थ केयर बोलेंगे. So now we will be learning about the core disciplines of public health. Which disciplines help public health to work on the community level and show effectiveness towards the population well-being. Now, public health sciences में क्या होता है? The multi or interdisciplinary understanding is required to anticipate, identify and prevent problems, identify strategies to resolve these problems,
implement these strategies, and finally evaluate their effectiveness. The details of core discipline of public health are given. जैसे कि हमने कहा कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, तो सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को एंटिसिपेट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे हम कहें कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? पॉपुलेशन में जुकाम, सर्दी, खांसी, निमोनिया जैसी बीमारियां एंटिसिपेट की जाती हैं। फिर उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और किस फील्ड में आई है। फिर उसकी प्रिवेंशन के लिए हम उस प्रॉब्लम की प्रिवेंशन के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेटजीज को, और फिर इनको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिशों में लग जाते हैं। और फिर इन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंटेशन एट द पब्लिक ऑन द पब्लिक एट लार्ज, एंड फाइनली इवेल्युएट देयर इफेक्टिवनेस। और टाइम टू टाइम हम उसकी जो भी स्ट्रेटजी हमने इंप्लीमेंट की है उसकी इफेक्टिवनेस को भी इवेल्युएट करते हैं कि हम कितने इस मामले में इंप्लीमेंट करने के बाद सफल हुए हैं, या कितने हमें कोशिशें करनी है कि हम सफल हो पाए। तो जो मेजर कोर डिसिप्लिन हैं उसमें सबसे पहले है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स or events in specified populations and the application of this study to the control of health problems. तो जो एपिडेमियोलॉजी है वो किसी भी चीज की स्टडी करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कि वो कितनी बार हुई, डिस्ट्रीब्यूशन को कि वो कहां कहां फैली हुई है, और उसके डिटर्मिनेंट्स को, जो भी हेल्थ रिलेटेड के स्टेट्स हैं। स्टेट्स मतलब हेल्थ रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं या उनकी स्टेजेस हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स को स्टडी करती है। एंड इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशंस के स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में वो कितनी बारी हुआ और कब कब हुआ, और इस सारे की एप्लीकेशन टू द स्टडी ऑफ कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, और सबकी हम स्टडी करके उसको कंट्रोल करने में कैसे हेल्प में लाते हैं, उसको एपिडेमियोलॉजी बोला जाता है। एपिडेमियोलॉजिस्ट्स एग्जामिन 5 W's। तो ये एक निमोनिक बन जाता है, जैसे कि 5 W's के ऊपर उन्होंने काम करना है। जैसे व्हाट मतलब डायग्नोसिस ऑफ हेल्थ इवेंट के क्या हुआ है। हु, पर्सन मतलब कहाँ का पर्सन है, कहाँ रहता है, किस जोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करता है, किस पॉपुलेशन में रहता है, वो कौन है, हु। थर्ड W इज वेयर। प्लेस मतलब वो किस पर्टिकुलर प्लेस में रहता है, किस एरिया में रहता है, और वो कहाँ का ओरिजिनली रहने वाला है और कहाँ से वो आके ठहरा है या वहीं का नेटिव है, वो हुआ वेयर। फोर्थ W इज व्हेन। कब, किस टाइम पे वो हुआ, जैसे सर्दी में हुआ, गर्मी में हुआ, या कुछ स्प्रिंग समर में हुआ। तो ये सब टाइम उसको जो एपिडेमियोलॉजिस्ट को देखना पड़ता है कि किस टाइम पे जो भी हमने इशू देखा वो कब हुआ। फाइनली फिफ्थ है W जो है वाई एंड हाउ। तो उसमें क्या है कि क्यों हुआ और कैसे हुआ, मतलब उसके कॉजेस क्या रहे, रिस्क फैक्टर्स क्या थे, और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो इन 5 W's के ऊपर काम करके एपिडेमियोलॉजिस्ट को एक रिपोर्ट सॉर्ट बनानी होती है, जो कि आगे हम उसके ऊपर काम कर सके। Then comes nutrition. It is the science of food that nutrients and other substances therein, their action, interaction and balance in relation to the health and disease. हेल्थ और डिजीज के रिलेशन में जो भी हम फूड लेते हैं उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज क्या हैं, उसके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यूज क्या नहीं है, प्लस उसके जो एक्शंस क्या हो सकते हैं बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या हो सकते हैं, और हेल्थ के रिलेशन में उसने बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डालना है, ये सब न्यूट्रिशन की स्टडी के अंदर आता है। Nutrition science also includes the study of behavior and social factors related to food choices. क्या हमें कब खाना चाहिए, किस मौसम में खाना चाहिए, वो सब न्यूट्रिशन साइंसेस डील करता है। Environmental health. This core discipline of public health draws strongly on natural sciences. Environmental health scientists monitor the levels of contaminants in the environment to seek to understand the impact of environmental factors on health. Environmental health science हमें कैसे हेल्प करती है? जैसे हम कहें कि गर्मी के मौसम में जैसे आंधियां आती हैं
तो डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, तो डस्ट स्टॉर्म से एलर्जिक सीजन बढ़ जाता है। लोगों को जो एलर्जी के प्रोन टू हैं वो उनमें एलर्जिक डिजीजेस ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो एनवायरमेंटल सेंस हमें हेल्थ हमें ऐसी साइंस है जो नेचुरल साइंस के ऊपर डिपेंड भी करती है, और नेचुरल जो भी इवेंट्स होनी है वो हमें एनवायरमेंटल कंडीशंस को स्टडी करने में हेल्प करती हैं, और जिससे कि हम आगे एक स्ट्रेटजी बना सकें कि किस मौसम में हमें किस तरह का पब्लिक हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। फिर है हेल्थ एजुकेशन। Health education is a social science that draws from the biological, environmental, psychological, physical, and medical sciences to promote health and prevent disease, disability, and premature death through the education-driven voluntary behavior change activities. तो ये सारी साइंसेज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे बायोलॉजिकल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, साइकोलॉजिकल साइंसेज, फिजिकल एंड मेडिकल साइंसेज, और इन सब की साइंसेस के को असिमुलेट करके जो हेल्थ एजुकेशन हम देते हैं, दैट इज एम्ड टू प्रिवेंट हेल्थ to promote health and prevent disease, disability, and premature death in the population. Health education is any combination of learning experiences designed to help individuals and communities to improve their health by increasing their knowledge or influencing their attitudes. तो बेसिकली हमने हेल्थ एजुकेशन से इन सब फील्ड्स को लेके पॉपुलेशन को एजुकेट करना है, ताकि वो जान सके कि कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स उनके लिए बीमारी लेके आ सकते हैं, और वो हेल्थ मेंटेन करने के लिए उनसे कैसे बच सकते हैं। Then comes behavioral sciences. Behavioral sciences is that branch of science such as psychology, sociology, or anthropology that deals primarily with human action and often seeks to generalize about human behavior in society. जो भी human behavior है, जनरल masses का behavior है, उसको स्टडी करने के लिए जो साइंस है वो behavioral sciences कहलाती है। With the knowledge of human interaction, decision making, and group processes, public health professionals persuade people to make healthy choices. जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो इन बिहेवियरल साइंसेस को इसलिए स्टडी करते हैं ताकि पॉपुलेशन का बिहेवियर जान सकें कि वो किस प्रॉब्लम को डील करने के लिए क्या एक्शन लेते हैं, और उसको प्रॉपर डायरेक्शन में वो रीडायरेक्ट कर सकें ताकि वो बीमार ना हो और हेल्थ को मेंटेन कर सकें। इसलिए बिहेवियरल हेल्थ साइंसेज उनको हेल्प करती है। बोथ इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस, हेल्थ एजुकेशन एंड बिहेवियरल साइंसेज आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। थ्योरी में भी और प्रैक्टिस में भी जो हेल्थ एजुकेशन एंड बिहेवियरल साइंसेज हैं वो एक क्लोजली इंटर रिलेशनशिप शो करती हैं, ताकि दोनों के ऊपर इतना इंटरमिक्सिंग हो जाता है और दोनों के ऊपर ही वो पॉपुलेशन एक इंटरमिक्स्ड बिहेवियर शो होता है, जो कि इजी होता है कि दोनों को अगर हम स्टडी करें तो दोनों को स्टडी करने के बाद प्रॉपर रिकमेंडेशन बना सकें फॉर द पब्लिक एट लार्ज टू टेक एक्शन अगेंस्ट द इनकमिंग और ऑनकमिंग डिजीजेस एंड टू प्रिवेंट द इलनेसेस। अगली टर्म है हमारे पास हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन। दिस डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट गेटिंग पीपल टू वर्क हार्मोनियसली टुगेदर and to make efficient use of resources in order to achieve objectives. हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन में ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो लोगों को एक दूसरे के साथ हार्मोनियसली काम करने के रिदम में काम करने के लिए प्रमोट करता है, और एफिशिएंट यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको एफिशिएंट वे में यूज करने के बाद जो भी हम मैक्सिमम बेनिफिट्स उनसे ले सकते हैं, ऐसे लोगों को तैयार करता है। हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज। तो सारा मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज को प्लान करना, डायरेक्ट करना और आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करना, ये हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन सिखाता है। द बिजनेस ऑफ हेल्थ केयर इज ऑल्सो द डोमेन ऑफ हेल्थ सर्विसेज मैनेजर्स। जो हेल्थ केयर का बिजनेस है वो भी हेल्थ सर्विस मैनेजर्स रन करते हैं। देन कम्स बायोस्टैटिस्टिक्स। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू द बायोलॉजिकल एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स। बायोस्टैटिस्टिक्स का मतलब ये हुआ कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं कि हम कहें कि इस पॉपुलेशन में इतने लोग इस मौसम में बीमार पड़े, उसमें से इतनी एज
ग्रुप के इतने थे, इतनी एज ग्रुप के इतने थे, या इतने फीमेल थे, इतने मेल्स थे। तो उन सारे डाटा को कलेक्ट करके एक स्ट्रेटेजिकली उसको अप्लाई करना, उसको बायोस्टैटिस्टिक्स बोला जाता है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के, जब वो डील करने में सक्षम होता है। तो statistical methodologies are among the most important tools used by the researchers in any fields, especially when you are dealing with the problems of a larger population. तो जो statistical methods हैं वो अप्लाई हमेशा किए जाते हैं जब हमने किसी प्रॉब्लम को लार्जर पॉपुलेशन में डील करना है। तो लार्जर पॉपुलेशन की सबसे पहले जो स्टडी होती है वो यही होनी चाहिए कि वो किस पॉपुलेशन में कितना मेल, कितना फीमेल, कितने परसेंट बूढ़े, कितने परसेंट यंग, कितने परसेंट बच्चे किस डिजीज से किस मौसम में अफेक्ट होते हैं, और पहले क्या हो चुका है। तो उसी के बेसिस पे हम प्रिडिक्शन भी बना सकते हैं कि आगे होने वाले मौसम में क्या होना चाहिए, कि हम बूढ़ों को ज्यादा बीमारियां होती हैं तो उनको बचाने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। तो ये बायोस्टैटिस्टिक्स एक बेसिक ये फील्ड है जो कि डाटा तैयार करता है। Then comes health economics. It is concerned with the alternative uses of resources in the health services sector and with the efficient utilization of economic resources such as human resource, material and financial resources. जो भी resources हमें available हैं उसको उसके अंदर अंदर ही हमने सारे काम चलाने हैं, इसी को health economics बोलते हैं। तो इसमें जो हेल्थ सर्विसेज सेक्टर है वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन देखता है कैसे हो सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज की, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल कैसा है हमारे पास अवेलेबल उसको भी यूज करना है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हमें जितना अवेलेबल है उसी के अंदर हमने कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसकी लेनी है। देन डेमोग्राफी. Demography is the study of population, especially with reference to size and density, fertility, mortality, growth, age distribution, migration, and interaction of all those with social and economic conditions. तो इन सब की जैसे पॉपुलेशन में उसकी डेंसिटी, साइज, फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, किसी भी चीज की हमने किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो चीजें स्प्रेड देखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन है, माइग्रेशन है, उसको स्टडी करना है, तो वो डेमोग्राफी के अंदर आता है।